یہ ڈاکٹر احمد لکھوی صاحب ہیں. ان کی زبانوں سے سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ تفسیر، یہ ترجمے آپ سن لیں، سمجھ لیں، پھر میں آپ سے آگے گفتگو کرتا ہوں. امید افزا آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب دیکھیں اس میں طرز تخاطب بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، میرے بندوں سے. اب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ گناہ کیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ہیں. اچھا ان سے کہہ دیجئے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں نہ مایوس ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. کیوں کر دے گا؟ اس لیے کر دے گا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ایسے کرو کہ تم اپنے رب کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر دو. ایک کام انسان نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے، تو پھر وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر انہوں نے جو قرآن مجید کی تفسیر ابھی بیان کی ہے، سنائیں. اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا. بے شک حق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت میں یہ کلام ہوئے ہیں. یہ کلام اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ڈاکٹر احمد لکھوی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اب اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ گناہ کر بیٹھے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا، وہ ہے ہی غفور و رحیم. اور وہ کیوں معاف کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے سامنے جھک پڑو، اپنے رب کے جانب خود کو سبمٹ کر دو، یعنی کہ سمرپت کر دو، سپرد کر دو. ایک کام بندے کو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، سبمٹ کر دے، پھر وہ ساری گناہ معاف کر دے گا. پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا. لیکن تھوڑا میں چاہوں گا ان کی گفتگو میں تھوڑا اور روشنی ڈالنے کو. یہ تو ہم سے اعلیٰ جانتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ. یہ ضروری نہیں کہ تمہارے داڑھی ہیں، تمہارے سر پر امامے ہیں، تم نے درس نظامیہ کیا ہے، تم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو ہی تمہیں اللہ ہدایت دے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ ہر وہ بندے کو ہدایت دے سکتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ البقرہ کی آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینا لوگوں کو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے. اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہدایت میں عطا جسے چاہوں اسے کروں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، اور میں جسے ہدایت دیتا ہوں تو اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہوں. تو اللہ کی ہدایت جب بندے کے قلب کو حاصل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی سمجھ اسے آتی ہے، قرآن کو وہ بندہ سمجھنے لگتا ہے. بھلے وہ درس نظامیہ نہ کیا ہو، بھلے وہ مدرسوں کی تعلیم حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور بھلے وہ سر پہ امامے ٹوپی وغیرہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، پر اللہ جسے چاہے اسے ہدایت عطا کر سکتا ہے.
अल्लाह एक सड़क छाप चलते हुए को भी हिदायत अता कर सकता है, कुरान की समझ अता कर सकता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर अहमद लकवी साहब ने जो बातें फरमाई, जो तफसीर कुरान मजीद की पेश की है, उसमें किसी बात का कोई भी राई के दाने के बराबर भी कुछ गलत नहीं है। उन्होंने बिल्कुल तफसीरें आप लोगों की जानिब सही पेश किया है, हक बताया है। और लेकिन इसमें चंद कुछ बातें ऐसी है जो रोशनी डालने वाली है, जो समझने वाली और समझाने वाली है। सो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो आप ज़रूर इसे आगे भी लोगों को समझाएंगे, लोगों को पेश करेंगे, बताएंगे, और हमारे इस बताए हुए और इस तफसीर से आप मुतमईन होंगे। कुरान मजीद की इस तफसीर से आप मुतमईन होंगे, क्योंकि मैं जो भी बात बताने जा रहा हूँ, मैं इसे और रोशनी डाल रहा हूँ इन तफसीरों में, और मैं मजीद खोल रहा हूँ जो आप लोगों को सुनने में बेहद और अच्छा लगेगा और कुछ जानने समझने को भी मिलेगा। जैसा कि इन्होंने फरमाया, जो तफसीरें बयान की शुरुआत में इस आयत की, कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। मेरे बंदों से अल्फाज पकड़िएगा। शुरुआतों में जो इन्होंने कहा, क्या कहा कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो मैं इसका खुलासा मैं आप लोगों को बयान कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसका खुलासा तो ये होता है, इसकी तफसीर, इसकी तशरीह ये सामने पेश हो रही है कि मेरे बंदों से कह देने से मुराद ये है कि अल्लाह जिसे अपना बंदा बता रहा है और जता रहा है कि मेरे बंदों से कह दीजिए, तो ये इससे साबित हो रही है कि ये काफिरों के लिए ये आयत नहीं, ये आयत काफिरों के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के हवाले से उनकी मुकद्दरों में लिख दिया कि ये खुले गुमराही में हैं और इनके लिए ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ही फरमा दिया। तो ये बात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है कि मेरे बंदों से कह दे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, नसीहत करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है कि मेरे बंदों से कह दें जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो ये वो बंदे हैं जो काफिर नहीं हैं, ये वो बंदे हैं जो दीन इस्लाम में शरीक हो चुके हैं, दीन इस्लाम कबूल कर चुके हैं और दीन इस्लाम पर अमल पायरा हैं, पर वो गुमराह हैं, पर वो भटके हुए हैं, राह सुलूक को, अल्लाह की राह को भुलाए बैठे हैं और अपने तरीक़ों से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही हैं, अभी वो मोमिन नहीं हुए हैं। ऐसे बंदों को अल्लाह फरमा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नसीहत कर रहा है कि ऐ नबी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। और आगे ये फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह रहमत करने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो मेरे बंदों से मुराद ये लिया जाता है कि अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया, दीन इस्लाम में दाखिल हुए, पर वो गुमराह हैं, वो मुनाफिकाना काम अंजाम दे रहे हैं, वो भटके हुए हैं राह से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं। दीन इस्लाम में तो हैं पर फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया उन्हें नसीहत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा है। और रही बात कि आप लोगों के जहन में अगर ये बात आ रही होगी कि काफिरों के हवाले से ये बात है, तो काफिरों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह कर दिया, क्लियर कर दिया कि उनकी मुक़द्दर में मैंने जहन्नम लिख दी है और वो
खुली गुमराही में रहेंगे। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें नसीहत ना करें, इन्हें नसीहत करने से कोई नफ़ा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये रास्ते पर नहीं आएंगे। ये भी आयत गुजर चुकी है। इन्हें नसीहत करने से कोई फ़ायदा ना है, इनकी पुश्त पर मैंने कुफ्र के मोहर लगा दिए, इनके कल्ब पर मोहर लगा दिए हैं और ये खुली गुमराही में है, इनका ठिकाना जहन्नम है। इनके ऊपर नसीहतें काम नहीं आएगी। एक जगह पे अल्लाह ये फरमाता है इनके ऊपर नसीहतें काम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर अल्लाह नसीहत करने को फरमा रहा है कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो दीन इस्लाम कबूल किए, दीन इस्लाम में तो हैं, नमाज रोजे हज ज़कात वगैरह कर तो रहे हैं, पर वो खुली गुमराही में हैं, अल्लाह के राह से भटके हुए हैं, आपकी नसीहत पे, आपके बताए हुए रास्तों पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से गुमराह हैं। तो मेरे बंदों से कह दीजिए कि अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह रहमत करने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम। तो ये नसीहतें उन मुनाफिक मुसलमानों के लिए हैं, वो मुसलमान तो हैं पर मुनाफिक हुए हुए हैं, हिलो हुज्जत कर रहे हैं और अपनी तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, अपने जानों पर वो जुल्म कर रहे हैं। उनके लिए ये बसारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दे रहा है, उनके ज़रिए उनके लिए ये बसारत दे रहा है। तो यहाँ से साबित ये हुआ कि मुनाफिक और मोमिनों में फ़र्क है, मुसलमानों में और मोमिनों में फ़र्क है। मुसलमान जो होते हैं वो नए नए जो दीनी इस्लाम में दाखिल हुए और अभी वो मोमिन नहीं बने हैं और अपनी तरीक़ों से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो जिस्मानी तौर से वो अमल कर रहे हैं, रोज़े नमाज सब कर रहे हैं, लेकिन बातनी तौर से, रूहानी तौर से अभी वो अल्लाह की ओर रुजू नहीं किए हैं। रूहानी तौर से, कल्बी तौर से अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किए हैं, खुद को अल्लाह की तरफ झुकाए नहीं हैं, खुद को समर्पित नहीं किए हैं रूहानी तौर से, तो वो अभी मुसलमान हैं, अभी वो मोमिन नहीं हुए हैं। मोमिन बनने के लिए, ईमान वाला बनने के लिए इस कल्ब को अल्लाह की ओर रुजू करना पड़ता है, अल्लाह की ओर झुकाना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है। अपने कल्ब को अल्लाह के याद में, अल्लाह के ज़िक्र में, अपनी रूह को अल्लाह से जोड़ना पड़ता है, अपनी रूह को अल्लाह से जोड़ना पड़ता है, तो वो मोमिन बंदे कहलाते हैं और दिल में अल्लाह की याद, अल्लाह की ज़िक्र उतारनी पड़ती है। लेकिन जो नए नए मुसलमान बने हैं वो दुनियादार, वो गुनाहगार हैं, नमाज रोजे कर रहे हैं लेकिन दुनियादारी में मुलख्खिस हैं, डूबे हुए हैं, जिस वजह से उनसे गुनाह हो रहा है, ख़ताएँ हो रही है। तो उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। जान क्या है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। आप लोग जान से मुराद ये ले लेते हैं ना कि जान से मुराद ये जिस्म है। अल्लाह इस जिस्म को नहीं जानता, अल्लाह इस जिस्म को नहीं जानता। जिस्म से तो आप अमल कर रहे हैं, रोज़े नमाज सब कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग भी कर रहे थे, तो अल्लाह इस जिस्म को नहीं जानता। इस जिस्म के अंदर जो रूहें बंद है, उस रूह को अल्लाह जानता है, उस रूह को अल्लाह जान कहता है। मेरे बंदों से कह दीजिए, फरमा दीजिए कि जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया, तो अल्लाह की फरमाबरदारी अगर नहीं करेंगे, नमाज रोजे कर रहे हैं, दीन इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करेंगे, उनकी पैरवी नहीं करेंगे, उनके नक्शो कदम पे नहीं चलेंगे, तो क्या होगा कि आप अपने तौर तरीके से अपने जिस्म को अमल में लगाएंगे, अपने जिस्मों को आप अपने तरीके से चलाएंगे, तो इससे होगा क्या, रिजल्ट क्या सामने आएगी कि आपके जान जो इस जिस्म के अंदर है, उस जान के ऊपर जुल्म होगी, उस जान पर आपने जुल्म किया, क्योंकि यही असल जान जो इस जिस्म के अंदर है, इसी जान को निकल कर आगे वहाँ तक जाना है, ऊपर तक जाना है, अल्लाह तक इसी जान को जाना है और इसी जान से हिसाब व किताब अल्लाह के फरिश्ते को लेना है। और ये जान पर वो जुल्म कर रहे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करके, उनकी पैरवी नहीं करके। तो ऐसे बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया,
تو اللہ کی रहमत से मायूस ना हो, खुद को अल्लाह के आगे समर्पित कर दो, सबमिट कर दो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम है। अब अगर आपको अपने जानों पर जुल्म होने से अपने जान को बचाना चाहते हैं, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग जाइए। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो अमल अपनी जीवन में लाइए और उसी तौर तरीके पे खुद को चलाइए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाएं, तो जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में आप रंग जाएंगे, उनके तौर तरीके पे खुद को चलाएंगे और उनकी जो वो तालीम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अता की है, उस तालीम पर अमल पायरा रहेंगे। हुजूर पाक ने दो तरह की तालीमें चलाई है, एक तालीम चलाई है इल्म शरीयत की, एक तालीम चलाई है इल्म तरीक़त की। लेकिन जो बंदे सिर्फ इल्म शरीयत पर किनात करके रहें, तो इल्म शरीयत वाला जो तालीम है वो जिस्मों को नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, गुस्ल, वजू वगैरह ज़िंदगी जीना, नमाज के अदायगी, ये सिखाता है इल्म शरीयत। ज़िंदगी जीने के तरीके ये सिखाता है इल्म शरीयत। इससे तो वो अपने जिस्म को कायदे कानून में लगा दिए, लेकिन इससे उनके जान जो है इस जिस्म के अंदर वो जान महफूज नहीं हुआ, फिर भी इस तरह से उनके जान पर जुल्म ही हो रहे हैं। अब जान को जुल्म से बचाना है, तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दूसरी तालीम जो इल्म तरीक़त थी जो हुजूर पाक ने चलाया, वो इल्म तरीक़त भी हासिल करनी होगी। इल्म तरीक़त जो है वो जिस्म के अंदर जो जान है उस जान की तालीम है, उस रूह की तालीम है। उस रूह को भी उस तालीम के ज़रिए, इल्म तरीक़त के ज़रिए उस रूह को भी अल्लाह के राह में लगाना है, अल्लाह की बंदगी में लगाना है। तब आप जिस्म को भी अपने महफूज कर लिए और जिस्म के अंदर जो जान है उस जान को भी आपने महफूज कर लिया, अपने जानों पर जुल्म होने से उस जान को बचा लिया। अब जिस्म का तो आपने ख्याल रखा, इल्म शरीयत के ज़रिए आपने कायदे कानून पर लगा दिए, तौर तरीके सलीखे लगा दिए, लेकिन जो अंदर जान बंद है, जो रूहें बंद है, उसको आपने वो इल्म नहीं सिखाया, वो तरीके नहीं सिखाए, उस जान की परवरिश आपने नहीं की। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि इन्होंने अपने जानों पर जुल्म कर किया। तो इसलिए अल्लाह की राह में सबमिट कर दें, अल्लाह की राह में समर्पित कर दें, जिससे आपकी जान महफूज हो जाए, जुल्म होने से बच जाए। ये था तरीका। अब जान को महफूज करना है, जान को हिफाजत करनी है, अल्लाह के नज़रों में लाना है और वहाँ के लिए तैयार करना है कि मरने के बाद तो जान ही आगे जाती है ना, ये रूह ही तो आगे जाती है। इस जान से ही तो, इस जिस्म के अंदर जो जान है उस जान से ही तो सवाल जवाब होते हैं। 360 सवाल कवर में जो होते हैं इस जान से ही होती है, इस रूह से, लतीफ़ा नफ्स से ही होती है। तो इस रूह को, इस लतीफ़ा नफ्स को तैयार करना है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म शरीयत के अलावा, इल्म शरीयत में रूह की तालीम नहीं है, इल्म शरीयत में जिस्मों की तालीम है, ज़ाहिरी तालीम है, लेकिन इल्म तरीक़त जो चलाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इल्म तरीक़त जो है ना हमारे नफ्स, हमारे रूह की तालीम देती है, उसे कायदे कानून में लगाती है, अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह के फ़िक्र और उस रूह को पाक साफ करने का तरीका सिखाती है। वो इल्म तरीक़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म तरीक़त। और वो इल्म तरीक़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद खास लोगों को ही अता किया। जैसे अपने बाद हुजूर पाक ने मौला अली के ज़रिए ये सीना बाई सीना, ये इल्म तरीक़त की इल्म, ये रूह की तालीम सीना बाई सीना आगे चलाया। और आज भी देखिए चल रही है, वलियों के ज़रिए, ख्वाजा, दाता, गौस पाक के ज़रिए आज भी ये चल रही है। ये दिलों वाली तालीम, रूहों की तालीम, जिससे जान महफूज हो जाता है। तो ये रूह की तालीम, ये जान की तालीम क्या है? इल्म तरीक़त है क्या? इल्म तरीक़त ये है कि आपके अंदर लतीफ़ा नफ्स है, लतीफ़ा क़ल्ब है, लतीफ़ा रूह है, इनके भी अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार हैं, अल्लाह के ज़िक्र हैं, इन्हें सिखाना पड़ता है। जैसे लतीफ़ा क़ल्ब के ज़िक्र जो है, इसमें ज़ात अल्लाह है, अल्लाहू का ज़िक्र से इसे आबाद करना होता है। जैसे लतीफ़ा रूह है, लतीफ़ा रूह का ज़िक्र इस्म ये है कि या अल्लाह के ज़िक्र से इसे जगाना होता है।
इसे आबाद करना पड़ता है, इसे ताकत पहुंचानी पड़ती है। जैसे हमारे अंदर एक शैतानी जरसूमे हैं, लतीफ़ा नफ्स है, उस लतीफ़ा नफ्स को पूरा कलमा तैयब पढ़ाना पड़ता है। कलमा तैयब तो हम आप जुबान से पढ़ते हैं, लेकिन दर हकीकत वो कलमा तैयब हमको जुबान के साथ हमको वो लतीफ़ा नफ्स को ही पढ़ाना होता है। जैसे सर में एक लतीफ़ा, एक रूह है, लतीफ़ा अना है, उसका जिक्र या हू के जिक्र उसे सिखाना पड़ता है। तो ये रूहानी इल्म बातिन, इल्म तरीक़त भी हमें हासिल करना है। हुजूर पाक के दो इल्म चले हैं, एक इल्म जाहिर, एक इल्म बातिन। और ये आपने सुना होगा कि इस्लाम के दो पर हैं, दोनों पर आप लगाएंगे तो आप परवाज कर पाएंगे और ऊपर तक उड़ के जा पाएंगे और कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर एक पर लगाएंगे तो आप यूं ही दुनिया में भटकते रह जाएंगे, कभी आप परवाज नहीं कर पाएंगे। तो दोनों पर लगाना होता है, ज़रूरी है, कामयाबी हासिल करनी है। तो ये है, हमने पूरी बातें खोलकर आपके सामने पेश की। अब आप लोग जिन जिन भाइयों को समझ में आया वो ज़रूर हमारी इन बातों पर सहमत जाहिर करेंगे और लाइक करेंगे, और जिन लोगों ने मेरी बातों को नहीं समझा, अपने जिस्म को ही, अपने इस खाक को ही, इस मिट्टी के जिस्म को ही सब कुछ जाना, तो वो हमारी बातों को डिसलाइक करेंगे और इस पर एतराज़ जताएंगे। लेकिन जो इस जिस्म के अलावा जो जानते हैं कि मरने के बाद ये हमारे अंदर की जान, हमारी रूह आगे जाएगी, ये जिस्म को यहीं रह जाना है, मिट्टी में मिट जाना है, तो वो हमारी बातों से सहमत जाहिर करेंगे, सहमत जताएंगे, सहमति और लाइक ज़रूर करेंगे। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई आप लोग जिस्म के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर जो लताइफ़ें हैं, जो रूहें हैं, उस पर भी तवज्जो दें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के इल्म के अलावा आगे जो तरीक़त की इल्म चलाई है, उस इल्म पर भी तवज्जो दें। और वो इल्म हासिल होता है, शरीयत का इल्म तो आप किसी भी मदरसे से, मौलवियों से हासिल कर लेंगे, लेकिन रूह की जो इल्म है, बातनी इल्म जो है, इल्म तरीक़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये इल्म हासिल करने के लिए आपको किसी वली का, किसी मुर्शिद का, किसी कामिल जात का दामन थामना होता है। क्योंकि ये दिल वाली तालीम है, ये रूहों की तालीम है, ये बातनी तालीम है, अंदर की तालीम है। ये वही लोग जानेंगे जो रूहानी उस्ताद होंगे, जो वली होंगे, अल्लाह के दोस्त होंगे। इस इल्म के बारे में वही जानते हैं और वही इसकी तालीम देते हैं। और आज हमारे सरकार, हमारे मुर्शिद पाक सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ये तालीम आम कर रहे हैं, लोगों को अता कर रहे हैं, क्योंकि वो कामिल जात हैं। वो इल्म शरीयत की तालीम भी देते हैं, इल्म तरीक़त यानी कि रूह की भी तालीम लोगों को देते हैं। और आज लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को सरफराज किया है, रूहानी इल्म से, बातनी इल्म से नवाजा है। तो आप भी क्यों ना सरकार गौहर शाही का दामन थामें, सरकार गौहर शाही से जुड़ जाए। वो एक कामिल जात है भाई, अल्लाह की जानिब से उन्हें इज़्न मिला हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उन्हें इजाज़त मिली हुई है। एक बार आजमा के तो देखें कि सरकार गौहर शाही क्या हैं, उनकी क्या कुव्वत है, उनकी रूहानी क्या फ़ायदे हैं, आजमा कर देखें। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।